Hello everyone. As you know that today is ORS day and it's 29 July as you know, and ORS is the main therapy for the diarrheal diseases, and it's very cost effective method uh, to the patients who gets diarrhea, and it helps in the treatment of diarrhea. So what exactly is ORS? ORS is oral rehydration solution. So it's available everywhere in the market, and it is mostly being used for diarrheal diseases. Why actually we want to know that why actually ORS is the mainstay of therapy for diarrheal diseases? So that I'll be covering in few questions which I'll be telling you, and accordingly you can get to know about the things, what exactly happens in diarrhea and why ORS is being given in all the patients who are having diarrhea. So as you know, in diarrhea there is loss of water and also minerals. So if it keeps on increasing and we are only just giving water to the patient, so minerals which are being lost in diarrheal diseases, in that case what happens is that minerals which are being depleted from the body is not being getting back into the body. So ORS, what it does is it just keeps replenishing the depleted minerals which are lost from the diarrhea during the illness. So ORS, what exactly it contains? It contains sodium chloride, potassium chloride and sodium citrate along with glucose plus whatever water we add on. So there are number of variety of ORS. Majorly 5 types of ORS are available. I'm not going into the detail of that, but mostly which we use ORS is WHO approved ORS, that is low osmolarity ORS. So that ORS which is being used is given in diarrheal diseases, particularly in children, whether they are younger children or they are older children. Younger children, say, I mean to say that even it can be given in neonates who are newborn babies. So it's not that just a newborn baby who is having diarrhea, or who is just keep on purging rate is very high, we should not give ORS in that case, but we can definitely give ORS in neonates, which many parents they do ask कि हम अपने छोटे बच्चे को ORS दे सकते हैं या नहीं दे सकते. देन व्हाट एग्जैक्टली ORS जो होता है उसको हम कितने तरीके से घर पे भी बनाया जा सकता है, बट मोस्टली हम लोग बाहर से खरीदते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री काइंड्स ऑफ ORS. The one which is being made at home. So how it is made at home is 6 tablespoons of sugar, half tablespoon of salt, and 1 liter of water we take it, and usually you can use it that also as a ORS solution in a patient who is having diarrhea and you are not able to buy ORS from outside. In that condition you can give that also, but since it is very cheap, it is only 16 rupees per sachet which is available in the market as a WHO ORS. So I think you should definitely give that, because that contains adequate amount of each and every mineral which is being given in, which has to be given in the diarrheal diseases. So there is another thing which is which many people they do ask कि sir ORS के solution में विटामिन सी होता है या नहीं होता. So actually what happens is vitamin C का combination comes in ORS-L जो आजकल टेट्रा पैक्स में अवेलेबल है. So that is the major difference between घर के ORS में, one which is already being given in the market, that is usual WHO approved ORS, and third one is ORS tetra pack, that is ORS-L which people says, that is available in many flavors, apple and lemon flavor, anything you can take, whatever you feel. Then अब ये ORS when it should be given. So ORS should be given in any type of diarrhea. It doesn't matter whether it is a bacterial diarrhea, viral diarrhea, parasitic diarrhea, whatever diarrhea. Whenever there is a fluid depletion because of diarrhea, you can use ORS in that condition. Next thing many people they do ask के जो diarrheas होते हैं when they are not getting corrected even after giving ORS, then what should we give? Actually in that case you should first of all, any diarrhea should not take it lightly. When you feel that diarrhea बहुत लेवल से ज़्यादा है और पर्ज रेट बहुत हाई हो रहा है, उस केस में आपको हमेशा एक डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है. सो ऑलवेज विजिट टू द हॉस्पिटल एंड शो टू द पीडियाट्रिशियन, बिकॉज
देर आर फ्यू साइंस विच यू कैन ऑल्सो जज एट होम, कि आपको पता लग जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है कि बच्चे की जो आईज हैं वो संकन हो जाए, मतलब अंदर की तरफ धंसनी शुरू हो जाए। बच्चे को अगर आपने डायपर लगा रखा है और आपको पता है कि बच्चा 1 घंटे या 2 घंटे में यूरिन पास कर देता है, लेकिन अगर वो 6 घंटे तक यूरिन पास नहीं करता है, देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर को विजिट करना है। प्लस आपको पता लग जाएगा कि बच्चा निढाल पड़ रहा है, जाग नहीं रहा है, एक्टिव नहीं है, बच्चे के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। कई बार हम स्किन जो पेट की होती है उसको टच करके हल्का सा फील ले सकते हैं कि स्किन कितनी जल्दी वापस जा रही है और कितनी स्लोली जा रही है। अगर वो स्लोली जा रही है मतलब पानी की भयंकर तरीके से कमी हो रही है बच्चे को, इसलिए तुरंत अस्पताल जाएं और ज़रूर बच्चों के डॉक्टर को या किसी भी डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें आप हॉस्पिटल में। अब ये है कि हम डायरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। डायरिया को बहुत तरीके से प्रिवेंट कर जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइजीन। अगर हाइजीन नहीं रहेगी तो डेफिनेटली बच्चे को डायरियाज होंगे। दूसरा है कि आपने खान पीने पे ध्यान दीजिए। जो आप बाहर का खाना पीना बच्चे को अगर देते हैं तो उससे भी आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि बारिशों का सीज़न चल रहा है, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फेस में डायरिया, जॉन्डिस की बीमारियां ये सब पर्टिकुलरली ज़्यादा आती हैं। प्लस आप खाते हैं, खाने से पहले हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से हाथ धोएं खाना खिलाने से पहले या बच्चा के खाने खाने से पहले, तो हाथ ज़रूर धुलवाएं। चौथी चीज़, जहाँ बच्चा बैठा है जो उसका फर्श वगैरह है उसकी अच्छे से सफाई रखें। और अगर बच्चा कुछ मुंह वहीं पे पड़ा हुआ कोई खिलौना अपना बच्चा मुंह में डाल रहा है तो उसको जितना से जितना हो सके अवॉइड करें। प्लस अगर आप रोटा वायरस नाम से जो मोस्टली डायरियाज होते हैं जो कि वायरल डायरिया है उसके लिए वैक्सीनेशन आती है, तो वो अपने बच्चे की वैक्सीनेशन डॉक्टर के पास ज़रूर जाके करवाएं। वो 6 महीने से पहले दी जाती है, 6 महीने के बाद उसका शॉट नहीं दिया जा सकता, इसलिए प्लीज़ वो विज़िट करके वो वैक्सीनेशन ज़रूर लें। अब ये है कि ओआरएस के बारे में ही थोड़ी और विस्तार में बात करते हैं। ओआरएस जो पर्टिकुलरली दिया जाता है ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप इसे कैसे बना सकते हैं, इसका एक पाउच आता है जो कि 1 लीटर बॉटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा बर्तन जिसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए, उसके अंदर सॉल्यूशन डाल के उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके क्वेश्चन ये आता है, कई लोग पूछते हैं कि सर हम कितने टाइम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली जैसे आपने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया तो बड़ों बच्चों के केस में हमें लगभग इसकी देने की जो मात्रा रहती है वो ये रहती है कि एक दस्त होने पर बच्चे को 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से आप उसे दे सकते हैं, या पर स्टूल के हिसाब से दे सकते हैं। अगर उसने 1 घंटे में एक ही दस्त किया है और बच्चे का वजन 50 किलो है तो लगभग 500 ml उसे 1 घंटे में देना बहुत जरूरी है। अब कई लोग ये पूछते हैं अगर बच्चा छोटा है तो उसमें चक्कर ये रहता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उसमें हमें किस दर से देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो छोटे बच्चे एकदम सारा ओआरएस पी नहीं पाएंगे, उस केस में हमें चम्मच और कटोरी इस्तेमाल करनी होती है और थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ ही हमें ओआरएस पिलाना होगा। दूसरा है कि अगर उल्टी होती है तो कितना ओआरएस दे सकते हैं। उल्टी होने का जो कैलकुलेशन है वो है 2 ml पर केजी पर वॉमिट। मतलब लगभग आप समझ लीजिए अगर बच्चा 50 किलो का है और उसने वॉमिट किया है 1 घंटे में एक बार, तो आप लगभग 2 ml पर केजी मतलब 100 ml के करीब उसे आप ओआरएस दे सकते हैं। ओआरएस देने के बहुत बेनिफिट हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि उससे क्या हो सकता है। प्लस ओआरएस में एक पर्टिकुलर जो हमारा अमाउंट रहता है जो हम नहीं बोलते कि आप घर पे ओआरएस बना के दीजिए, उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ रहता है। अगर बच्चे के शुगर का लेवल गलती से भी ज़्यादा डल जाता है ड्यूरिंग डायरिया के टाइम पे तो वो दस्तों को और ख़राब कर सकता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, क्योंकि उससे पर्ज रेट बढ़ जाएगा बच्चे के पानी में, बच्चे के शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये विस्तार में थोड़ा सा ये था कि डायरिया में क्या हो सकता है और कौन से डायरियाज ऐसे हैं जो ओआरएस से रेस्पॉन्ड नहीं करते। अब ओआरएस हर किसी में आप दे सकते हो, वो एक दर तक ठीक है, बट ओआरएस के अलावा बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है अगर ओआरएस से दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं तब। उसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हो सकता है कुछ जांचों के लिए आपसे बात करे, बट अगर जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ता तो कुछ चांसेस रहते हैं कि बच्चे को कहीं बैक्टीरियल डायरियाज ना हो, जिसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। डायरियाज के साथ साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि बच्चे को कोई बुखार, खांसी, ज़ुकाम, दस्त ये सब चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ओआरएस के अलावा हमें डॉक्टर के पास जाने से पता लगता है कि
ये दवाइयाँ देने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। अब ORS का जो मेन कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि एक 6 महीने के बच्चे का वज़न एक सर्टेन अमाउंट तक होना चाहिए, बट जैसे कई बच्चे होते हैं जो हार्ट की बीमारी लेके पैदा होते हैं या उनको कोई ब्रेन की कोई दूसरी बीमारी होती है, तो वो सीवियरली माल नरिश्ड बच्चे कहलाते हैं। तो सीवियरली माल नरिश्ड बच्चों में एक ORS अलग तरीके से आता है जिसको हम रेसोमाल बोलते हैं। रेसोमाल ORS जो है वो आप घर पे भी बना सकते हो। उसका सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जो नॉर्मल ORS का सैशे आता है, जो हम 1 लीटर पानी में डालते हैं, वो आप 1.7 लीटर पानी ले लीजिए, तो वो रेसोमाल बन जाता है। तो रेसोमाल ORS जो है वो आप उन सीवियरली माल नरिश्ड बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन सीवियरली माल नरिश्ड बच्चों को पहचानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए डॉक्टर के पास विजिट करना बहुत ज़रूरी है। तो कई बच्चे जो हमारे फॉलोअप्स में इस तरीके से होते हैं, उनके बारे में हमें डिटेल विस्तार में ये चीज़ें पता होती हैं कि ये बच्चे कमज़ोर हैं, उतने नॉर्मल एक बच्चे की तरह नहीं है जितना एक नॉर्मल बच्चे का वज़न होना चाहिए। सपोज़ एक बच्चे का वज़न 6 महीने के बच्चे का वज़न सपोज़ 6 किलो है और वो बच्चा सिर्फ केवल 3 किलो का है या 3.5 किलो का है, तो वो हो सकता है कि सीवियरली माल नरिश्ड हो अनटिल अनलेस वो बच्चा प्री टर्म बच्चा हो। उस केस में हमें ये रेसोमाल का ORS इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ORS की मात्रा देने से भी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए इस तरीके के बच्चों में रिस्क ना लेके तुरंत अस्पताल में विजिट करना ज़रूरी है। डायरिया का अपने आप में प्रिवेंशन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाइजीन आप अच्छे से अच्छे रखिए, खाना ढंग से बनाइए, बॉयल करके लीजिए, हैंड हाइजीन, फ्लोर हाइजीन सब कुछ मेंटेन करके चलिए, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो जिस तरीके से आप हाइजीन मेंटेन करेंगे, डायरिया नहीं होगा, और डायरिया होता है तो आप ORS का इस्तेमाल कीजिए। और ORS आपको पता है कि कमज़ोर बच्चा है तो ये वाला ORS अब आप दे सकते हैं, और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। विश यू ए वेरी हैप्पी ORS डे। टेक केयर। ठीक है।